Very good morning, friend. In our last lecture, we have seen about the Bleek's theory, wherein Bleek has assumed that the water which is seeping below the floor or below the foundation of the uh, diversion headwork, it creeps along the boundary of the flooring and the foundation soil below it. एक बार हिंदी में आपको समझा देता हूँ कि ब्लिग ने ऐसा एज्यूम किया कि जो जो फ्लोरिंग है डाइवर्शन हेडवर्क का, वो फ्लोरिंग के नीचे से जो पानी जाता है सीपेज होके, वो बिल्कुल फ्लोरिंग को चिपक के जाता है नीचे से। उसको उसने क्रीपिंग एक्शन करके बोला है ना। मिलिट्री में वगैरह ऐसे करते हैं, ऐसे हाथों से जब जाते हैं एक आधे एरिया में तो उसको क्रीपिंग करके बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो थियरी एज्यूम किया उसने, और उस हिसाब से उसने अपलिफ्ट प्रेशर, लेंथ ऑफ द एप्रन, all he has established his own coefficient, creeping coefficient or coefficient of creep, etc. And he has suggested the design. But later on it has been found that the designs made by Mr. Blix and the structures or the flooring constructed accordingly for the diversion headwork, they were failing. वो क्या हो गया कि वो साल 2 साल में उनको क्रैक आना चालू हो गया। तो फिर उसके ऊपर में जब पढ़ाई की गई और वो जो जहां जहां क्रैक आए वहां वहां का प्रेशर देखा गया, तो ऐसा ध्यान में आ गया कि दिस प्रेशर इज क्वाइट लार्ज practically as compared to the that has been suggested by Bleek. तो उसके ऊपर से बाद में फिर और पढ़ाई चालू हो गई। वन मिस्टर खोसला, इंडियन हाइड्रोलॉजिस्ट एंड सॉइल मैकेनिक्स एक्सपर्ट एज वेल एज द सिविल इंजीनियर, he studied the flow of the seepage below the foundation as well as into the soil, and he has found that the water flows into the soil and it follows certain path. He has given it the name as the streamlines, as we give the name in our fluid mechanics. Streamline is nothing but the path followed by the water particle. और उसने ऐसा देखा कि ये कोई ऐसा जो इसने बोला था ब्लीग ने कि चिपक के जाता है क्रीप होके, वैसा कुछ नहीं है। जैसे ये आपको स्केच दिख रहा होगा, तो ये स्केच में जैसे बताया है, इट फॉलोज इट फ्लोज below the foundation as has been shown here, and there are certain points on the streamlines, number of streamlines, where the potential energy is same, and that those lines he has given as the name as the equipotential line. So streamlines are nothing but the lines followed by the water particle to seep, to permeate from one end to another end of the flooring, and the perpendicular line on the streamline to the streamlines on which the potential energy is same, those lines are called as the equipotential line. And for these lines, uh, he has used the equation of Mr. Laplace. इसके बाद में दूसरा खोसला ने दूसरा एक जो सजेस्ट किया, वो उसने एक एग्जिट ग्रेडियंट नाम का एक कंसेप्ट दिया। वो बहुत बराबर है, साइंटिफिकली और टेक्निकली इट इज वेरी करेक्ट कि ये जो पानी सीप होता है, एवरी पार्ट वाटर पार्टिकल विच सीप्स विच परकुलेट्स बिलो द फाउंडेशन और फ्लोरिंग, it flows with certain energy. And we have been discussing about this energy since so many our lectures, that this water particle possess the energy which is the potential energy of the water stored on upstream of the weir or any dam. क्योंकि हम डाइवर्शन हेडवर्क के बारे में सोच रहे हैं तो हम इसको वियर बोलेंगे। तो वियर में पानी रोक के रखा है हमने, और ये पानी को एक हेड है, कैपिटल एच बोलो या कुछ भी हेड है, दैट हेड और उसका वेट जो है वाटर का, दैट वाटर वेट मेक्स द वाटर टू सीप
बिलो द फाउंडेशन, है ना। पानी को प्रॉपर्टी है, वो जगह हर जगह देखता है कि उसको कहीं से क्रैक मिल गई, वॉइड्स मिल गए, तो उसमें से इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो इन द सेम वे दिस वाटर फ्लोज बिलो द फाउंडेशन ऑफ द फ्लोरिंग। अब ये पानी एक आगे आगे जा रहा है क्योंकि इसको पीछे से ढकेलने वाली ये पोटेंशियल एनर्जी या हाइट ऑफ वाटर है। और ये जब वो एनर्जी से आगे जा रहा है तो इसको खुद को वेलोसिटी है, तो वो जो वेलोसिटी से वो जा रहा है उसको हम काइनेटिक एनर्जी करके बोलते हैं, 1/2 mv²। So in the same way, the potential energy is converted into the kinetic energy. Same principle or same thoughts are applied for all the seepage through the soil. और जब ये पार्टिकल आगे जाता है तो ये पार्टिकल को, वाटर पार्टिकल को, बीच में बहुत सारे सॉइल पार्टिकल टकराते हैं, है ना। वो कोई रास्ता थोड़ी बना देते हैं उसको कि जा रे भाई तू। So it impinges or impacts on the soil particle. उससे टकराने के बाद में वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं, कम होती है ना। टक्कर होने के बाद में एनर्जी कम होती है, फिर और कहीं बाजू से उसको वॉइड्स में से वो रास्ता निकलता है और आगे जाने का ट्राई करता है। तो ये कब तक रहेगा? अनलेस एंड अनटिल इट हैज गॉट दैट पोटेंशियल एनर्जी सफिशिएंट। वो एनर्जी बीच में खत्म हो गई तो वो वाटर पार्टिकल आगे में जाएगा नहीं जाएगा। So in this way, this water particle, if its energy is sufficient to reach the downstream part of the floor, तो फ्लोर के डाउनस्ट्रीम पार्ट से बाहर निकलता है। और वो बाहर निकल, ये जो उसको प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर हेड जिसको बोलेंगे वाटर हेड, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। दिख रहा है ना आपको स्केच में, एफ एफ करके जो है, एफ इज द टेंजेंट टू दैट स्ट्रीम लाइन, that F is the force or the pressure which this water particle has got due to the head of water stored on the upstream side of the waste weir. तो ये F टेंजेंट है। ये F का यदि हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये पार्टिकल को आगे ढकेलता है, अरे वर्टिकल कंपोनेंट ये पार्टिकल को ऊपर ले जाता है, ये फोर्स का या प्रेशर का। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसको प्रेशर ग्रेडियंट करके बोलते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड एज द प्रेशर ग्रेडियंट। और ये प्रेशर ग्रेडियंट जब सबसे आखिरी में ये फ्लोरिंग से सबसे आखिरी में जब निकलता है, दिस प्रेशर ग्रेडियंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, देन इट इज कॉल्ड एज द एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट यानी बाहर निकलने वाला, तो ग्रेडियंट यानी उतार, स्लोप। So exit gradient and this upward component of this water particle which is coming out from the downstream part of the floor, क्योंकि वो फ्लोर में से नहीं आ सकता इसलिए वो सॉइल में से बाहर निकलेगा नीचे में जो है। और ये एग्जिट ग्रेडियंट जो है, दिस एग्जिट ग्रेडियंट ट्राइज द वाटर पार्टिकल टू कम अपवर्ड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पानी क्या काम करता है। एक तो जो डाउनस्ट्रीम पार्ट के सॉइल पार्टिकल है उसको ऊपर उठाने का काम करता है, क्योंकि पानी आने के कारण सॉइल पार्टिकल का वेट भी कम हो जाता है बायोन्सी के कारण। और ये वर्टिकल कंपोनेंट के कारण, दिस वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट्स टू लिफ्ट द सॉइल पार्टिकल मोर अपवर्ड्स। एंड इफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट is more, or this exit gradient is more than the weight of the soil particle. If exit gradient is more than the weight of the soil particle, then it is called as the critical exit gradient. तो हर वक्त क्या सिचुएशन रहना चाहिए कि this exit gradient should be less than the weight of the soil particle so that it will not lift the soil particle. soil particle के डाउनस्ट्रीम को उठाएगा नहीं। तो जो हमने सैंड बॉइलिंग करके एक टर्म पढ़ा था, या सैंड बॉइलिंग होते होते
बाद में पाइपिंग नहीं होगा नीचे में, और पाइपिंग नहीं होगा तो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। पाइपिंग यानी मैंने बताया था पार्टिकल एक 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 निकलते निकलते, जब स्ट्रक्चर के नीचे से भी ऐसे पार्टिकल आगे आगे निकलते जाएंगे तो स्ट्रक्चर के नीचे एक पाइप तैयार हो जाएगा। तो ये मिस्टर जो खोसला है, इन्होंने ये एग्जिट ग्रेडियंट का कंसेप्ट एक बनाया, और उस पर से क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट और सेफ एग्जिट ग्रेडियंट, ये दो कंसेप्ट दिए। So the exit gradient is said to be critical when the upward disturbing force on the grain, that is the soil grain, is just equal to submerged weight of the grain at the exit. ठीक है, तो ये दो वेट यानी अपवर्ड वाटर प्रेशर, अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ द वाटर प्रेशर, एंड सॉइल ग्रेन का वेट, सबमर्ज्ड वेट, क्योंकि पानी नीचे से है तो सबमर्ज्ड वेट, ये दोनों जब सरीखे हैं तो उसको क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट बोलेंगे। और ये हरदम सरीखे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, क्योंकि हो सकता है वाटर पार्टिकल का अपवर्ड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो इट विल लिफ्ट द सॉइल पार्टिकल। सो द एज फार एज पॉसिबल, अब इस पर से हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि द एग्जिट ग्रेडियंट शुड बी लेस देन द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द ग्रेन ऑफ एट एग्जिट। When this exit gradient is less than the submerged weight of the grain at exit, then it is called as the safe exit gradient. So these two concepts he has given, critical exit gradient and the safe exit gradient. And he said that the factor of safety should be 4 to 5. अब ये exit gradient safe रहने के लिए क्या करना चाहिए, वो उसने आगे में he has given certain he has given certain values, or he has ready-madely made that exit gradient कितना कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम ये आता था हाउ टू वर्कआउट द एग्जिट ग्रेडियंट, हाउ टू वर्कआउट द अपलिफ्ट प्रेशर, है ना। दो चीजें अभी हो गई इसी पेज के कारण कि एक अपलिफ्ट प्रेशर भी एक्ट होता है फ्लोरिंग के ऊपर में, और एग्जिट ग्रेडियंट डाउनस्ट्रीम में होता है। तो दोनों के लिए ये यानी स्ट्रक्चर की लेंथ इतनी रहनी चाहिए फ्लोरिंग की कि दैट एग्जिट ग्रेडियंट शुड बी सेफ एग्जिट ग्रेडियंट, एज वेल एज द स्ट्रक्चर का थिकनेस इतना रहना चाहिए कि दैट फ्लोरिंग का कि इट शुड कॉम्पेंसेट और काउंटर बैलेंस द अपलिफ्ट प्रेशर। ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए। बहुत डिटेल में हमको बिल्कुल खोसला थियरी में जाना नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी है वो, तो उतना नहीं जाते हुए हम थोड़े फास्ट जाते हैं और हमारे स्पिलवे को टच करते हैं आज कम से कम, या स्पिलवे का कुछ ना कुछ तो जरूर कवर करते हैं। तो he has given this equation dH by dl is equal to 1 minus n into g minus 1 for the critical exit gradient. ठीक है, dH, h is the head of the water, the dH upon dl along the length of the flooring, the rate of the change of the head of water, that is exit gradient, is 1 minus n into g minus 1, wherein the values of the g, those constant gravitational constant, or that constant of g is not gravitational constant, it is constant of the percolation. G value he has given as 2.65 for the river sand and n as the 0.44. And when this is for the critical exit gradient, अभी हमें सिर्फ बहुत डिटेल में न जाते हुए थोड़े थोड़े ये समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं है। So when this exit gradient is 1/4 to 1/5 of the critical gradient, यानी क्रिटिकल ग्रेडियंट कब को क्या बोला हमने कि जब एग्जिट ग्रेडियंट is equal to the submerged weight of the soil particle, then that gradient is called as the critical exit gradient. That is this dH by dl. If this exit gradient is less than the critical exit gradient, how much? 1/4 or 1/5, then we say that the exit gradient is the safe exit gradient, and factor of safety is 1/4 by 1/5, है ना। थोड़े कुछ चीजें हमें समझ लेना चाहिए। खोसला के सेफ एग्जिट ग्रेडियंट उसने कुछ सॉइल्स के लिए दिए हैं, दोज वी विल कीप इनटू माइंड। ये टेबल मैंने आपको दिया है।
अब खोसला की थियरी भी हम फास्ट में अगले 10 मिनट में समझ लेते हैं और फिर हम आगे में जाते हैं। खोसला थियरी काय के लिए? खोसला थियरी इज फॉर डिजाइन ऑफ द फ्लोअर on the alluvial soil of the diversion headwork. Khosla's theory for design of the flooring or foundation or the raft of the diversion headwork on alluvial soil है ना, कि because the soil over which or the river bed is a sandy or alluvial. Based on the studies of Mr. Blick and the exit gradient concept, that is the critical exit gradient and the safe exit gradient, उसने कुछ सेफ्टी के हिसाब से कि ये फ्लोर जो है ये नहीं होना चाहिए, इसका डिमोलिशन बोलो या डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए. फॉर दैट पर्पज ही हैज गिवन सर्टन assumptions. Again, based on his study, the outer faces of the end sheet piles were much effective than inner ones, and the horizontal length of the floor. उसके ऐसे ध्यान में आ गया कि एंड के जो पाइल्स है, शीट पाइल्स, इसके आउटर सरफेस बहुत इफेक्टिव है, या उसकी लंबाई उसकी हाइट जितनी ज्यादा रही, यानी ये फॉर व्हाट पर्पज? अगेन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सीपेज. As the length of the seepage will increase of the water particle, its exit gradient will decrease, है ना. लेंथ बढ़ेगी जितनी लंबाई फ्लोरिंग की बढ़ेगी, either by increasing the length or by providing the sheet pile. सीपेज लेंथ जिसको बोलेंगे, या ब्लिक के हिसाब से क्रीप लेंथ बोलेंगे. तो यहाँ पे तो उसने बोला क्रीप वीप कुछ नहीं होता, वो नीचे से स्ट्रीमलाइन जैसा बहता है. तो ये सीपेज पाथ जितना बढ़ेगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो उसको उतने सॉइल पार्टिकल को टकराते हुए जाना पड़ेगा, एंड एट लास्ट ही विल लूज हिज दैट वाटर पार्टिकल विल लूज इट्स एनर्जी, and therefore it cannot come out from the downstream end and will not leave the soil particles. So no sand boiling and no piping will occur. ठीक है, I will again request you to please go through that sand boiling concept and piping. तो ये एक हो गया, यानी लेंथ का डिजाइन हो गया. अब दूसरा हो गया अपलिफ्ट. तो अपलिफ्ट भी जो है, दैट अपलिफ्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ और द hydraulic gradient. So as the length increases, the uplift will also reduce, as well as the thickness of the floor. Okay, so the uplift कम होते जाएगा, the thickness of the floor भी कम लगेगी. और उसने यही एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में और द सीपेज पाथ के बारे में बोला कि भाई हमने बीच में भी शीट पाइल दिए. इफ द इंटरमीडिएट शीट पाइल्स आर गिवन are smaller in length or the depth than the outer piles, they were ineffective except for the local redistribution of the pressure. तो वो इंटरमीडिएट पाइल बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं करके उसने बोला. अंडरमाइनिंग ऑफ द फ्लोर स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल एंड. अंडरमाइनिंग यानी पाइपिंग या सैंड बॉइलिंग. सो अंडरमाइनिंग ऑफ द फ्लोर स्टार्टेड फ्रॉम द टेल एंड. ये तो खोसला के थियरी का एक assumption या खोसला का assumption है. It was absolutely essential to have a reasonably deep vertical cutoff, that is the sheet pile, at the downstream end to prevent undermining. तो उसने क्या किया कि एंड पाइल को तो इंपॉर्टेंस दिया ही, लेकिन डाउनस्ट्रीम एंड पाइल जो है शीट पाइल, वो अब जितनी ज्यादा डीप रहेगी उतना अच्छा है, so as to prevent the undermining or the piping from the downstream end. ठीक है, तो खोसला के थियरी ने ये किया, और उसने जो लॉस ऑफ द हेड डिपेंड्स अपॉन होल ज्योमेट्री, दैट इज लॉस ऑफ द हेड मींस द एग्जिट ग्रेडियंट डिपेंड्स अपॉन द होल ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, the shape of the foundation, depth of the impervious boundary, that is sheet piles, and levels of upstream and downstream beds. ऐसे कुछ चीजों को उसने इंपॉर्टेंस दिया. When the equipotential lines are traced brought to closer
the rate of loss of head will be definitely quicker and vice versa. तो ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन है ये क्लोज लाना चाहिए. ये क्लोज लाना है, कोई खींच के नहीं ला सकते हैं. तो वो क्लोज लाने के लिए आपको एंड पाइल्स जितने ज्यादा देंगे आप लेंथ के, अपस्ट्रीम एंड पाइल, तो वो इक्विपोटेंशियल लाइन क्लोज आएगी. और वो क्लोज आएगी तो दे विल लूज मोर एनर्जी. ऐसा कहने का मतलब है, थोड़ा थोड़ा समझते जाइए अभी. इट इज कंक्लूडेड दैट सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, ये पाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझे कि नहीं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग द एग्जिट ग्रेडियंट वेल बिलो द क्रिटिकल वैल्यू. तो टू अवॉइड द पाइपिंग, एग्जिट ग्रेडियंट मैंने आपको समझा दिया. इट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द water pressure due to the retaining head at the exit at the outer point downstream of the floor should be below the critical value. critical value यानी जो हमने बोला था कि the exit gradient if it is equal to the submerged weight of the soil particle, the submerged weight of the soil particle से ये exit gradient हरदम कम रहना चाहिए. ज्यादा रहेगा तो ये पार्टिकल को उठाएगा, और कम रहने के लिए हमने ये पाइल वाइल प्रोवाइड करना चाहिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में. सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव ए रीजनेबली डीप वर्टिकल कट ऑफ, दैट इज द शीट पाइल्स at the downstream end of the downstream floor to prevent undermining. All these things he has concluded in his study, in the Khosla study. ठीक है. So this Khosla provided, this is very important, that the Khosla provided a ready-made rational solution of this seepage problem based on the potential flow theory and Schwarz-Christoffel ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, उसने कुछ रेडीमेड दिया हमें, बहुत अभी उसमें डिटेल में जाना नहीं है. द थियरी गिव्स अपलिफ्ट प्रेशर एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर. उसने जो फ्लोर है, आगे में हम और थोड़ा सा 1-2 मिनट और देंगे कि वो फ्लोर को, जो फ्लोरिंग है जिसमें अपस्ट्रीम शीट है, पाइल है, इंटरमीडिएट बीच में पाइल है, डाउनस्ट्रीम में पाइल है, बीच में वियर है, तो ये सब मिलके एक तुम्हारा डाइवर्शन हेडवर्क का स्ट्रक्चर बनता है. फ्लोर दोनों साइड में, डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में पाइल्स, बीच में पाइल और ऊपर में वियर. तो ये पूरा उसने, he has cut it off into 3-4 parts. He has given the ready-made exit gradient and the uplift pressures. The theory gives uplift pressure at various points of the structures depending upon its profile. It also gives the exit gradient. And then based on these two things, we should design the length of the structure as well as thickness of the structure. ऐसा in short खोसला ने दिया है. He has made available the ready-made points. These are the important suggestions. In this method of independent variables, a complex profile. Complex profile यानी वो जो structure का profile है मैंने अभी बताया, that of the weir along with the flooring and the cutoffs or the sheets piles is broken into number of simple profiles, each of which can be solved mathematically. वो उसने खुद ने ही सॉल्व करके कुछ रेडीमेड हमको फॉर्मूले सॉल्यूशन दिया. मैथमेटिकल सॉल्यूशंस ऑफ द फ्लो नेट्स फॉर द सिंपल standard profiles has been presented in the form of the equations which can be used for determining the percentage pressure at various key points. और उसको करेक्ट करने के लिए आखिरी में उसने सम करेक्शन फैक्टर दिया. ठीक है. सो दिस इज इन शॉर्ट द थियरी पार्ट ऑफ द खोसला suggestion. The thickness, this is the what he has arrived at. The thickness of the floor should be adequate to resist the uplift pressure. The uplift pressure at any point he has given that formula. ठीक है. We will not go much into the detail of this derivation etc. because it is not expected at our level. uplift मैंने जैसे बताया कि एक स्ट्रक्चर जो है, जैसे एक आधा फ्लोरिंग है उसकी उसने टुकड़े किए, जैसे दिस इज द डाउनस्ट्रीम पार्ट, अपलिफ्ट प्रेशर एट
ये डाउनस्ट्रीम का पाइल है, ये फ्लोर का एक जो फ्लोरिंग की लाइन बताई है, दिस इज डाउन द कट पार्ट ऑफ द डाउनस्ट्रीम पोर्शन, flooring part, the downstream cut off wall and the weir सेंटर में बताया, और वियर के पीछे पानी बताया है. The uplift pressure at the pressure heads at key points E, D and C, E, D अंदर का एंड द C बाहर का. तो इसके लिए उसने कुछ रेडीमेड फॉर्मूले दिए. Exit gradient के लिए he has worked out certain formula. Exit, because this is the downstream part, so exit gradient will be there. So this he has worked out. So pile at downstream end, the case 1 is pile at downstream end. Then he has given the case 2 pile at upstream end. इसके लिए pressure at the point E1, C1, D1. So all these pressures he has worked out. ठीक है, अगेन दिस प्रेशर्स ही हैज वर्कड आउट इन टर्म्स ऑफ द हेड एक्सेट्रा. ठीक है, ही हैज गिवन वन सम exit gradient constants, lambda, etc. So again, based on certain studies, he has given certain constants. But here we have to keep in mind that he has divided the structures into three parts. First is downstream part, second is upstream part, and the central part that we will be seeing in the next slide. And he has given the uplift pressures. This is the intermediate pile. है ना, बीच में यदि पाइल देते हैं तो फिर उसके प्रेशर्स वो जगह पे क्या रहेंगे. Those uplift pressure ready-made he has given out to work out in terms of the remaining length B1, B2, etc. And also given, as we have seen in the first slide, that is case 1, end pile के लिए exit gradient भी दिया. अगेन फॉर द डिप्रेस फ्लोर, कभी कभी हम फ्लोर थिकनेस ज्यादा देते हैं, तो उस इसमें अपलिफ्ट प्रेशर एट द वेरियस की पॉइंट्स ही हैज गिवन. व्हाट फ्रेंड्स आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू इज दैट इन शॉर्ट खोसला ने क्या बताया वो मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस में बताता हूं कि एज कंपेयर टू ब्लिग, उसने बोला कि ये स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल लाइन जैसे है, कि स्ट्रीम लाइन जैसा सीपेज फ्लो होता है. एंड ही हैज गिवन यूज दैट लाप्लास इक्वेशन टू ट्रेस आउट द स्ट्रीम लाइन कैसी जाती है, और स्ट्रीम लाइन में जो इक्वल पॉइंट प्रेशर रहते हैं उसको पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल लाइन बोला. एंड ही हैज गिवन वन कंसेप्ट ऑफ द एग्जिट ग्रेडियंट, which is nothing but the vertical component of the water pressure at the exit point of the flooring. वो exit gradient का concept दिया, उस पर से critical exit gradient और safe exit gradient बोला उसने, और उसके ऊपर से he has concluded with the uplift pressure at various points. जैसे अपस्ट्रीम में पाइल दिया तो वहां पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या रहेगा, बीच में पाइल दिया तो वहां पे क्या रहेगा, एंड में पाइल दिया तो वहां पे अपलिफ्ट प्रेशर क्या रहेगा, और एंड में एग्जिट ग्रेडियंट क्या रहेगा. सो बेस्ड ऑन ऑल दिस uplift pressure we can design the thickness of the flooring, and based on the exit gradient, or for that exit gradient to be safe, how much should be the length provided, और वो लेंथ सिर्फ फ्लोरिंग अलॉन्ग विद द एंड पाइल की भी उसमें डेप्थ ऐड होगी, सीपेज पाथ जो है पूरा, एंड दैट विल बी द फाइनल डिजाइन. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ही हैज सजेस्टेड सर्टन करेक्शंस, क्योंकि उसने तो टुकड़े कर दिया था स्ट्रक्चर के मेनली 3 पार्ट में, सेंट्रल पार्ट, अपस्ट्रीम पार्ट एंड द डाउनस्ट्रीम पार्ट, 3 पार्ट में किया. तो तीनों को अभी जोड़ना है एक साथ, क्योंकि स्ट्रक्चर एक साथ जोड़ना है. तो फॉर दैट पर्पस he has suggested 3 corrections for the thickness of the floor, corrections for mutual interference of piles, and correction for the slope of the floor. है ना, अभी बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखते, हम इतना ही रखते हैं, और ये करेक्शन के लिए he has suggested certain values. ओके, सो करेक्शन फॉर द थिकनेस, क्योंकि फ्लोर क्या है, फ्लोर को ये पहले 3 केसेस में हमने फ्लोर को बिल्कुल एक लाइन जैसा कंसीडर किया,
but floor will have certain thickness. So for that thickness, what will be the correction in the uplift pressure that he has thought of? Correction for intermutual or mutual interference of the file. अभी हमने डिजाइन जब 3 पार्ट में किया तो हर पाइल अलग अलग है कंसिडर करके किया, लेकिन एक पाइल का दूसरे पाइल के ऊपर इफेक्ट होगा सीपेज के लिए, बीच में के पाइल का एंड पाइल के ऊपर इफेक्ट होगा। तो ये म्यूचुअल इंटरफियरेंस ऑफ द पाइल के कारण अपलिफ्ट प्रेशर में क्या करेक्शन करना पड़ेगा, वो उसने कुछ वैल्यूज दिया। स्लोपिंग हम फ्लोर देते हैं, एक जैसा नहीं देते फ्लोर, क्योंकि बीच में जहां पे हमारा वियर रहता है ग्लेसिस फ्लोर टाइप देते हैं। बेसिकली फॉर द एनर्जी डिसिपेशन वी प्रोवाइड द फ्लोर स्लोपिंग. So for sloping floor also there will be certain corrections in the uplift pressure. So all this he has worked out. These 4 corrections are very important. That is the interference floor, interference of the pile correction, then the thickness of the floor, slope of the floor. ठीक है. So all he has done, he has given the ready-made calculations for all these uplift pressures. Just you try to understand the basics of this theory, and if you could recollect these various formulas, it's very well and good. And based on this, he has given the ready-made formulae for the uplift pressure at various points, as well as the what should be the safe exit gradient, and for that safe exit gradient what should be the seepage path, that is the length of the floor along with the depth of the upstream and downstream pile and intermediate pile, and accordingly we should design the flooring. यही उसने in short में हमें बताने का काम किया है. It will be my request to all of you to please go through the notes. Okay. Now we will move on to the next part of our discussion, that is regarding the spillways. Okay, as you can see from this photograph or sketch on your screen, ये डैम है एक, और डैम के राइट साइड में कहीं तो भी एक ऐसी जगह बताई गई है कि जहां से डैम का एक्सेस वाटर फ्लो होता है. ये एक्सेस वाटर जहां से जाता है उसे स्पिलवे करके कहते हैं. ठीक है, ये हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ स्पिलवे, जनरल प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा, वी विल ट्राई टू कवर 101% the remaining part till our tomorrow's lecture. ठीक है, as you can see this is a nice portion of a gravity dam or any dam which has got the overflow and the non overflow part. जैसे ओवरफ्लो पार्ट में 1 2 करके बताए गए, दे आर द स्पिलवे क्रेस्ट, दैट इज द स्पिलवे टॉप. स्पिलवे क्रेस्ट है ना, ऊपर का टॉप पोर्शन. कुछ पियर रहते हैं बीच में, क्योंकि ये स्पिलवे के ऊपर यदि गेट दिए तो वी हैव टू प्रोवाइड द पियर्स. स्पिलवे फेस, ये 3 नंबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 4th one is energy dissipation, because the water flows over this spillway with tremendous velocity. फिर से जो पीछे में रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर में पानी स्टोर्ड है और उसको हेड है. that stored water has got the head which gives this water the potential energy. ये potential energy concept समझना इजी है लेकिन बहुत जरूरी है ना. पोटेंशियल एनर्जी के कारण जब यहाँ के गेट ओपन होते हैं फ्लो स्पिलवे के, तब इसके ऊपर से पानी बहुत जोर से बहता है. या नॉन गेटेड भी स्पिलवे रहते हैं तो भी फ्लड वाटर इस पर से जाता है और वो वेलोसिटी से नीचे में जाके इट में इरोड और स्कावर द रिवर बेड. So therefore some energy dissipation arrangement is done. Number 5 is end seal. Number 6 is armored scour preventing bed. 7 is power house and the sector gates etc. ठीक है, स्पिलवे की डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं. मैंने फिर से अब अगेन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस फोटोग्राफ्स आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द स्पिलवेज. ये जैसे यहाँ से पानी जिसके ऊपर से बह रहा है आपको दिख रहा होगा, दे आर द स्पिलवेज. इट इज ए स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ द एक्सेस वाटर from the top of reservoir. It is very important. It is a structure to provide controlled release of excess water from top of the reservoir. डैम जो है, डैम के ऊपर से
हम पानी ये फ्लड का छोड़ते हैं ज्यादा का पानी, लेकिन वो कंट्रोल्ड छोड़ते हैं, कैसे भी हैप्पैजार्ड नहीं, जितना हमें चाहिए उतना ही छोड़ सकते हैं। दिस वाटर इज कन्वेड थ्रू एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड वाटरवे। ये स्ट्रक्चर जो है स्पिलवे को लग के हमने ओपनिंग प्रोवाइड किया है स्पिलवे में ही, सो उसको क्रिएटेड वाटरवे बैक टू रिवर टू एन एडजेसेंट रिवर वैली इनटू द डाउनस्ट्रीम एरिया। डाउनस्ट्रीम डैम के डाउनस्ट्रीम में छोड़ते हैं। दे आर द सेफ्टी वॉल्स ऑफ द डैम। ठीक है, जैसे हमारे कुकर का सेफ्टी वॉल रहता है, मैंने यहाँ पे बताया, वैसे द स्पिलवे आर द सेफ्टी वॉल्स ऑफ द डैम एज वेल एज हमने एक एस्केप स्ट्रक्चर पढ़ा था कैनाल के ऊपर में, ठीक है, कैनाल रेगुलेशन वर्क में। तो वैसे एस्केप स्ट्रक्चर इनटू द कैनाल is also a safety wall of the canal. So this spillway is the safety wall of the dam. It must be hydraulically adequate and structurally safe, क्योंकि इसके ऊपर से फ्लड वाटर जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिकली एडिक्वेट रहना चाहिए, यानी जितना फ्लड का पानी जाना है ना, वो पानी उस पर से फ्लो होना चाहिए, उस हिसाब से उसकी लेंथ और उसकी हाइट रहना चाहिए। और वो उसके ऊपर से पानी इतने जोर से जाता है फ्लड का, वो फ्लड के पानी के साथ में पत्थर जाते हैं, लकड़े जाते हैं, कचरा जाता है, तो वो स्ट्रक्चरली सेफ भी रहना चाहिए और पानी को रोकने की उसमें शक्ति भी रहना चाहिए। एंड द आउटफॉलिंग डिस्चार्जेस बैक इनटू द रिवर डू नॉट इरोड और अंडरमाइन द डाउनस्ट्रीम टो ऑफ द डैम। है ना, यहाँ से पानी जब निकलता है स्पिलवे से तो बहुत वेलोसिटी से डाउनस्ट्रीम में जाता है, तो नीचे जाने के बाद में नदी का जो पात्र है रिवर बेड, उसको उसने इरोड नहीं करना चाहिए, और डैम का जो नीचे का पार्ट है उसको अंडरमाइनिंग नहीं करना चाहिए, पाइपिंग नहीं करना चाहिए। है ना, अंडरमाइनिंग यानी वो डैम के नीचे टो को जो डाउनस्ट्रीम पोर्शन है उसके नीचे की सॉइल इरोजन नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्पिलवे। Its surface should be able to withstand erosion or scouring due to very high velocity। स्पिलवे का जो सरफेस है ये भी सॉलिड रहना चाहिए, इसके ऊपर से पानी जाता है, कंक्रीट इतना अच्छा रहना चाहिए जिस चीज का बनाया है, मैसनरी का है तो मैसनरी, that it should not itself get covered or the erosion should not take place। It comprises of the spillway की कंपोनेंट क्या है? एंट्रेंस चैनल, जैसे डाउन अपस्ट्रीम में आपको दिख रहा है पानी अंदर आ रहा है, दैट इज द एंट्रेंस चैनल। कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे स्पिलवे क्रेस्ट है, इसके ऊपर में गेट वगैरह है, तो दिस इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिस्चार्ज कैरियर, इसके स्पिलवे के ऊपर से पानी जाता है बहते हुए, तो दैट इज द डिस्चार्ज कैरियर। और डाउनस्ट्रीम में ये जैसे स्टीलिंग बेसिन आपको दिख रहा होगा शायद बारीक में आपकी स्क्रीन के ऊपर में, एन एनर्जी डिसिपेटर। एंड एनर्जी डिसिपेशन यानी जो स्पिलवे के ऊपर पानी जाता है उसकी बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी है, तो डिसिपेट होना है ना, खत्म होना, कम होना, तो एनर्जी डिसिपेटर, क्योंकि बार बार ये वर्ड अभी आगे में आने वाला है, तो एनर्जी डिसिपेटर आप समझ लीजिए। एंड द आउटलेट चैनल, स्पिलवे के ऊपर से पानी निकलने के बाद में जो एनर्जी डिसिपेशन से निकलेगा तो वहां से फिर से बाहर जाने के लिए आउटलेट चैनल। ठीक है, एखादा डैम वगैरह विजिट किया तो आपको ये सब कंपोनेंट आंखों से देखने को मिलेंगे। द एंट्रेंस चैनल जो हमने बताया, इट ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू द स्ट्रक्चर। इसके ऊपर इसके गेट से जो है, स्पिलवे के ऊपर में गेट है नहीं भी है, कुछ स्पिलवे अनगेटेड भी रहते हैं, so that regulates the discharge from the reservoir। Water is conveyed from the reservoir to low level energy dissipator on the river bed by the discharge conveyor। यानी स्पिलवे का टॉप पोर्शन जो है, यानी क्रेस्ट से लेके तो डाउनस्ट्रीम तक के, उसको कन्वेयर बोलेंगे, और नीचे का एनर्जी डिसिपेटर। फिर से एक फोटोग्राफ या स्केच मैंने यहाँ पे बताया, स्पिलवे क्रेस्ट, ऊपर के गेट्स, टेंटर गेट्स, है ना, जनरली कर्व्ड गेट्स हम लगाते हैं स्पिलवे को, दिस कर्व्ड गेट्स आर कॉल्ड एज द टेंटर गेट्स। ठीक है, ये पानी आता है, ये सब, दिस इज अगेन ए नाइस स्केच। दे आर प्रोवाइडेड विद द गेट्स फॉर द बेटर कंट्रोल ऑन द डिस्चार्जेस। समटाइम्स
In remote areas, ungated spillways are also provided. The capacity of the spillway, स्पिलवे के ऊपर से पानी बहने की कैपेसिटी काय के ऊपर डिपेंड है? एक द इनफ्लो ऑफ द फ्लड, फ्लड का कितना पानी अंदर आ रहा है, वो कैसे निकालेंगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलॉजी, दैट इज द रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, ठीक है, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एक्सेट्रा. सो द इनफ्लो फ्लड, वॉल्यूम ऑफ द स्टोरेज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्वायर, रिजर्वायर में कितना पानी स्टोर किया है, क्रेस्ट हाइट ऑफ द स्पिलवे, स्पिलवे जो हाइट हमने प्रोवाइड किया है वो, एंड द गेटेड और अनगेटेड. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्पिलवेज, दे आर द मेन स्पिलवे एंड द सब्सिडरी और इमरजेंसी स्पिलवे. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ द स्पिलवे. मेन स्पिलवे ये फ्लड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए या बड़े स्ट्रक्चर में मैसनरी या ग्रेविटी डैम में दिया जाता है. सब्सिडरी यानी एडिशनल स्पिलवे एखादा देते हैं, इन एडिशन, मे बी इन एडिशन टू मेन स्पिलवे, अगेन टू रिलीव द एक्सेस फ्लड वाटर. ठीक है, मेन स्पिलवे, सब्सिडरी और द इमरजेंसी स्पिलवे. Various types of the spillway today we will cover, and in our next lecture we will see the remaining part. With the help of the photographs, I have nice photographs of the various types of the spillway. You can see on the right side also you can see a typical type of the spillway. हमारे आंखों के सामने जो स्पिलवे है वो ये नंबर 2 का है, ओगी स्पिलवे जिसको बोलते हैं ना. हमने हरदम जो डैम देखे हैं वो डैम में ये ओगी टाइप स्पिलवे है. ओगी यानी, ओगी अर्थ होता है उल्टा एस, एस हम सीधा निकालते हैं, उसको यदि उल्टा किया रिवर्स एस तो वो टाइप का जो शेप रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द ओगी स्पिलवे. ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पिलवे वी विल सी वन बाय वन. द फर्स्ट इज द फ्री ओवरफॉल स्पिलवे. नाउ वी up till now we have learnt what is the purpose of the spillway, है ना. स्पिलवे किस लिए दिया जाता है और स्पिलवे से कितना डिस्चार्ज उसके ऊपर से जाना, उस हिसाब से स्पिलवे को डिजाइन करते हैं. सो ये फ्री ओवरफ्लो फॉल स्पिलवे इज ए वेरी सिंपल स्पिलवे wherein no specific shape is given to the spillway. A simple trapezoidal wall of the dam is sufficient to overflow the water over the spillway. ठीक है, और इसके ऊपर का पानी नीचे जहां गिरता है वहां का जो रिवर बेड है, एक तो वहां पे कुछ एनर्जी डिसिपेशन जैसे सी नंबर के स्केच में बताया, स्पिलवे विद डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क. if the downstream part of the spillway या रिवर बेड इज मेड अप ऑफ द साउंड रॉक, हार्ड रॉक, तो फिर नीचे में कोई विशेष डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है. स्पिलवे विदाउट डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन, स्पिलवे विथ ओवरहैंगिंग टिप, ऐसा भी देते हैं कम हाइट के लिए. दिस इज फॉर द स्मॉलर हाइट. एक ओवरहैंग देते हैं जैसे राइट साइड में बताया, ताकि फ्लो ऑफ द वाटर ओवर द स्पिलवे शुड फॉल अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर से जितना दूर जाएगा उतना अच्छा है. अंडर माइनिंग वगैरह जो इसके नीचे का है वो हम बचा सकते हैं. ठीक है, और तीसरा जो है स्पिलवे विद डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क. सो दिस इज ए सिंपल ओवरफॉल स्पिलवे. इसके ऊपर से सीधा पानी गिरता है जैसे फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा. ये देर इट इज ए सिंपल टाइप ऑफ द स्टेप्ड ओवरफॉल स्पिलवे. ठीक है, या ड्रॉप स्पिलवे जिसको बोलते हैं, which does not need much head upstream of that spillway. छोटे हेड के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं. सेकंड इज द ओगी स्पिलवे, बहुत इंपॉर्टेंट स्पिलवे है ये. द स्पिलवे क्रेस्ट शेप ऑफ एन ओगी और रिवर्स एस शेप, है ना, यहाँ पे दिख रहा है. अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूँ, वो आप समझ लीजिए. ये स्पिलवे का शेप जो है ओगी जिसको बोलते हैं, वो काय के ऊपर से डिसाइड होता है ना. ये यहाँ पे बीच में आपको ग्रे कलर और राइट साइड में स्पिलवे टॉप दिख रहा होगा, और यहाँ पे बीच में ऊपर में एक आपको बताया है कि एक ये स्पिलवे का जो टॉप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट टॉप, जो टॉप यानी उसका शेप जो है, एंड दैट शेप इज डिसाइडेड ऑन द अपर कर्व. द अपर कर्व ऑफ द ओगी or the top curve
ऑफ द ओगी, यानी ये जो टॉप कर्व है, is designed and made to conform closely to the profile of lower nappe of ventilated sheet of water falling from the sharp crested weir, है ना। ये जैसे शार्प क्रेस्टेड वियर है, आपके इसमें टॉप में दिख रहा होगा शार्प क्रेस्टेड वियर। तो ये शार्प क्रेस्टेड वियर से जब एक आधा पानी बहता है तो इट फॉलो, यहाँ से क्रेस्टेड वियर के ऊपर से जब निकलता है तो ये इसका फॉलिंग वाटर का एक शेप रहता है। ये फॉलिंग वाटर के टॉप पार्ट को बोलते हैं अपर नैपे, या ये जो पानी नीचे गिरता है दैट इज कॉल्ड एज द NaPPE नैपे। तो इसके ऊपर का जो शेप है उसको अपर नैपे करके बोलते हैं, और नीचे का जो शेप है उसको लोअर नैपे करके बोलते हैं। ठीक है, फॉलिंग वाटर काय के ऊपर से, शार्प क्रेस्टेड वियर से जब पानी गिरता है। तो ये जो लोअर नैपे है, तो ये जो हमारा स्पिलवे का टॉप ऐसा रहना चाहिए, स्पिलवे के टॉप का जो शेप ऐसा रहना चाहिए कि वो लोअर नैपे को टच होना चाहिए, इट शुड फॉलो द लोअर नैपे। ये ओगी स्पिलवे का फंडामेंटल है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि ये लोअर नैपे के शेप का यदि ओगी स्पिलवे का टॉप रहेगा तो उसके ऊपर कोई सक्शन या कोई निगेटिव प्रेशर कुछ नहीं होगा, और फ्लो विल बी स्मूथ, there will be very less friction between the flow and the top surface of the spillway. Again I will repeat, friend, I will read this sentence. The upper curve of the ogi ka upper curve is designed and made to conform closely to the profile of lower nappe of ventilated sheet of water. ये जो शीट ऑफ वाटर है वेंटिलेटेड है ना, इसके नीचे हवा है इसलिए वेंटिलेटेड, ऑफ वाटर फ्रॉम शार्प क्रेस्टेड वियर। ठीक है, मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया होगा। तो ये ओगी स्पिलवे का जो शेप है वो इस हिसाब से डिसाइड होता है, सो दैट दिस फॉलिंग वाटर विल एडियर, यानी विल टच टू द फेस ऑफ द प्रोफाइल of that spillway top profile by preventing entry of air or access of air to underside of sheet of flowing water। इसके नीचे हवा नहीं जाएगी क्योंकि हमने वो उसको शेप दिया है ऐसा, और there will not be any negative pressure। The presence of negative pressure between sheet of water and spillway surface resulting in cavitation। यदि ये शेप हमने वैसा नहीं दिया लोअर नैपे जैसा तो इसमें निगेटिव प्रेशर होगा और कैविटेशन होगा। वो क्या होगा मैं आगे में बताता हूँ। कैविटेशन है ना सक्शन, और वो सरफेस को सक करके वो कंक्रीट सरफेस को खराब करता है, गड्ढे तैयार करता है। सो वाइब्रेशन फ्रॉम मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर एंड फेस ऑफ द डैम इन सीरीज, यानी ये ऐसा शेप नहीं दिया तो बहुत वाइब्रेशन आएंगे और डैम को डैमेज करेंगे। A reverse curve at the bottom of the slope, downstream में reverse curve at slope turns the flow into the apron of sliding basis or into the spillway। ठीक है, so these are the sharp crested weir you can see on the top left according to this ogi spillway at design flow। उसके बाद में ओगी स्पिलवे विद ग्रेटर फ्लो, डिजाइन फ्लो से भी ज्यादा फ्लो है तो कैसा उसमें डाउनस्ट्रीम में हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगी। And what are the various dimensions of the Ogi spillway on upstream and downstream? These are the various formulas we'll learn। है ना, ये फिर से again a nice photograph of the two types of the spillway, that is the main spillway and the subsidiary spillway। ठीक है, these are the again from the NPTEL notes। The regarding the Ogi spillway is very important spillway, therefore this importance। ओगी के जो शेप रहते तो ओगी क्रेस्ट यानी टॉप जो है हैविंग ए वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस, या अपस्ट्रीम फेस वर्टिकल है तो ओगी क्रेस्ट हैविंग ए वर्टिकल अपस्ट्रीम फेस। ओगी क्रेस्ट हैविंग इंक्लाइंड अपस्ट्रीम फेस, ये इंक्लाइंड अपस्ट्रीम फेस है, दूसरा फिगर है। और ओगी क्रेस्ट हैविंग ओवरहैंग ऑन अपस्ट्रीम फेस, ये ऐसा ओवरहैंग जो है ना, तीन फिगर है। तीन फिगर डिस्क्राइब्स the various types of the ogi shapes
वी कैन अडॉप्ट। ठीक है, अभी हम आखिरी के 5 मिनट में ये ओगी के डायमेंशन समझ लेते हैं। थोड़े से फास्ट जाते हैं, लेकिन फिर से इट विल बी माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू to please go through the notes, and or you can go through the this video also to understand you better। ये ओगी का टॉप है। ये यहाँ से आपको एक्सिस दिखाई देगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस on the crest of the ogi। On the left side is given by those values x1, on the right side it is given by the value x2, and at the downstream y1 and y2। ठीक है, from the upstream face the value is shown by a1, and from the top the value is given by b1। ठीक है, these are some constants, a1 and b1 is the constant। तो ये जो फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस एक्स एंड वाई एक्सिस, या जो इसका क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ का जो अपस्ट्रीम पार्ट है ओगी का, अपस्ट्रीम क्वाड्रंट, अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द ओगी और क्वाड्रंट, यानी ये जो डॉटेड लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में का जो पार्ट है, इसके जो ऑर्डिनेट है, इसके जो शेप है, दे आर गिवन बाय, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्लिप्स, और उसका फॉर्मूला है x1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x1, x1 है ना ये लेफ्ट साइड में, x1 को आपने एक आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर अप टू a1, जो भी वैल्यू आपने दिया है तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी। तो x और y कोऑर्डिनेट मिले तो आप अपस्ट्रीम साइड का ओगी का शेप निकाल सकते हैं। वैसे ही फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द राइट साइड द डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल और डाउनस्ट्रीम शेप ऑफ द ओगी विच इज एक्चुअली द लोअर पार्ट ऑफ द फॉलिंग नैपे। हमने अभी देखा था कि लोअर पार्ट ऑफ द नैपे का जो शेप है वो ओगी का शेप रहना चाहिए। तो दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन x2 raised to 1.85 k2 into hd raised to 0.85 into y2। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है x2 raised to n, k2 into hd raised to m into y2, ऐसा है, आगे में हम देखते हैं। but this 1.85 and 0.85 are the specific values for the vertical exactly vertical part on the upstream part। ठीक है, तो ये जनरल रिलेशन फॉर द डाउनस्ट्रीम प्रोफाइल इज x रेज टू n k into h d raised to n minus 1 into y। again k and n are constants। hd is the design head, ये जो अपस्ट्रीम में आपको बताया डिजाइन हेड है ना, फ्लो, ये फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस स्पिलवे जो भी डिजाइन डेप्थ रहेगी वाटर की, दैट इज hd। again this figure shows you very nicely what is a value, what is b value, etc। okay, so this the Indian standard for this again 6934 1973, and it is updated till now। so this Indian standard gives the downstream phase equation or the downstream phase shapes। ठीक है, so this is and for this, for the various vertical faces, etc., the value of k and n are given, standard values are given in that is। x and y are the coordinates of the profile of the crest, है ना। x राइट साइड में, x2 जो बोला हमने, and y2 डाउनस्ट्रीम में नीचे में, और the y ordinate is below। hd is the design head, k and n are the constant values given in by that is in the table 11.3। for the vertical pace k is equal to 2 and n is equal to 1.85। ठीक है, this is that table wherein the k and n value, and for the various shapes of the upstream part of the ओगी spillway, उसके लिए ये k and n value are different। हमने देखा था वर्टिकल है, अपस्ट्रीम पार्ट स्लैंट है, और अपस्ट्रीम पार्ट ओवरहैंगिंग है। तो उसके लिए क्या क्या वैल्यूज रहेंगे, फॉर दोज
These are the values given, ready-made values given. ओगी क्रेस्ट यदि ओवरहैंगिंग है तो उसके लिए क्या रहना चाहिए, दो दोज आर ऑल्सो गिवन, जैसे यहाँ फोटो में बताया. अगेन vertical, sloping, overhanging, all this depends on the downstream flow profile, है ना. ओगी कर क्योंकि इसके ऊपर से बहुत हेड से और इससे पानी जाता है, इसलिए वो हमें एनर्जी डिसिपेशन का इम्पोर्टेंट रखना पड़ता है. अभी ये जो ओगी से निकलने के बाद में सबसे आखिरी में जब डाउनस्ट्रीम में आता है, तो दिस ओगी हैज बीन गिवन ए रिवर्स एस शेप, है ना. डाउनस्ट्रीम का जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, बकेट करके लिखा है डाउनस्ट्रीम का. तो इसके लिए भी जो रेडियस हम देते हैं, दैट रेडियस हैज बीन गिवन स्टैंडर्ड बाय द फार्मूला आर इज इक्वल टू 10⁻⁴. ठीक है. रेडियस ऑन द डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ द ओगी, या बकेट में बकेट पार्ट बोलते हैं इसको. सो रेडियस ऑफ द बकेट और द डाउनस्ट्रीम or the toe part of this spillway. I am repeating the words again and again, downstream or the toe part of this spillway are given, is given by r is equal to 10⁻⁴. Alpha has got this formula, v plus 6.4 hd 4.88 upon 3.6. hd again design head, that we know. V is the velocity of flow in the top of the spillway or approach velocity. It has given by that formula, and in this way we can find the radius r. Generally, this is very important, friends. Here we will conclude. This r is equal to p by 4. P is that total depth of water, head of water. So generally ये जो radius है, ये p जो है head of water, depth of water और height of the spillway, इसके 1/4 रहता है. Generally it is found r is equal to p by 4 is satisfactory, where p is the height of the spillway crest above the approach channel or river bed. ठीक है. Here we will stop because your time is over. Tomorrow